Is my screen visible to all, guys? No? It's shared, but no, it's not happened. Let's share it again. Okay, just wait. Now it's okay. Can you see my screen, guys? Yes. What I'm writing, can you able to see? Is it visible? What I'm writing, guys? Is it visible? Pranali. Okay, ठीक है. Let me check again also. Just a minute. Okay, done. Okay. So hello everyone, guys. Good evening to all. So we are continuing the topic, that is inverse trigonometry function, and today it's the third lecture of this topic. Okay. So what we have discussed previously: inverse function, domain, range, and graph of trigonometric function, and we are continuing properties of ITF. Actually, basically, mainly we'll discuss 80% of the topic will be the properties. Okay, properties के बेस प्रॉपर्टीज बेस्ड है ये पूरा टॉपिक. ये टॉपिक में पूरा प्रॉपर्टीज ही है, और वो प्रॉपर्टीज को यूज करके काफी सारे क्वेश्चन भी आते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट today's class. Okay. So what I'm suggesting to you all, I'm just look after your screen. Okay, and write the domain and the range of all the trigonometry functions quickly, very quickly. Okay, just write the domain and range of all the trigonometry functions, what is on your screen. Okay, that on that's only just write the domain and range of all the trigonometry functions quickly. First is sine inverse of x. Okay, so what is the domain and range of sine inverse of x? Quickly, right, everyone? Domain is 1 to 1. Very good. Range, quick. Range is minus pi by 2 to pi by 2. Yes or no? Very good, Aditya. All of you should respond. All of you, please respond to the chat box. Everyone, please. Let's move to the second. Yes, Uday. Let's move to the second. Domain. What is the domain? For the second trigonometry function, what is the domain? Minus. Very good, Hardik. Minus 1 to 1. Range is 0 to pi. Yes or no? 0 to pi for cos inverse of x. Yes or no? ठीक है जिग्नेश, उदय, very good. Kaushik, good. Let's move to the third trigonometry inverse to ITF. What is that? Tan inverse of x. What is the domain? Domain of tan inverse of x. Quickly write in the chat box, everyone, please. R is the domain. Very good. Everyone is responding. That's good. Domain is R. What is range? Range is minus pi by 2 to pi by 2, open interval, right? Open interval. Yes. Okay, very good. Let's move to the next. What is domain for cot inverse of x? What is the domain for cot inverse of x? It's R, right? R is domain. Range is very good. Everyone is responding. Good. Range is 0 to pi. Okay, 0 to pi. 0 to pi.
ठीक है, on y axis graph goes from 0 to pi. Very good. Open interval. Let's move. Fifth trigonometry function, that is cosec inverse of x. What is the domain? What is the domain? Very good. R minus 1 to 1. Okay. Chalo, or minus infinity to 1, minus 1, union 1 to infinity we can write also. Range. What is range? Range क्या है? cosec inverse x की range क्या है? रेंज क्या है? कहां से कहां तक जा रहा है ये? माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, यस, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, वाई एक्सिस में कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस जीरो, यस और नो? माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस जीरो. वेरी गुड आदित्य. क्लोज्ड इंटरवल, यस 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 यस. चलो चलो कौशिक, चलो माइनस जीरो. Last trigonometry function, that is second inverse of x. What is the domain? Everyone please write. What is the domain for cosec inverse of x? What is the domain? Domain is, can you please write everyone? Domain, what is domain? Same domain ना, r minus 2 1 है ना, ये domain है. What is range? Range is, what is range for sec inverse of x? कहां से कहां तक? तो y एक्सिस में कहां से कहां तक जा रही है? 0 to pi and minus 0 to pi minus pi by 2. Is it or not? 0 to pi minus pi by 2. So these are all the domain and range of inverse trigonometry functions and also graph, है ना? तो ये सारे चीज तो तुम्हारे दिमाग में पूरा कॉपी होना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है. सो लेट्स मूव. What are these three properties we have covered in the previous class, है ना? These three properties we have covered in the previous class. First is sine of sine inverse of x is equal to cos of cos inverse of x is equal to x when these constants are given. Okay, y is equal to tan of tan inverse of x, cot of cot inverse x is equal to x. Okay, cosec of cosec inverse of x is equal to sec of sec inverse of x is equal to x also. So these three properties we have covered in the last class. Is it or not? Okay, so let's move to the next property. Okay, what is, now I'm asking, if देखो, in the last property what we have? T of T inverse of x, which is giving you x, right? That is any trigonometric function of inverse trigonometric function of x, है ना? Like sine of sine inverse of x. So similarly here also, here where I'm asking what? Trigonometric function, inverse trigonometric functions of trigonometric functions is equal to what? ठीक है, दैट मीन्स इफ आई आस्क, अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? इज इट ऑलवेज एक्स गाइस? इज इट ऑलवेज एक्स? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इज इट ऑलवेज एक्स? दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी वी आर स्टार्टिंग. इज इट ऑलवेज एक्स? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको अच्छे से समझो. बोलो बोलो. नो, व्हेन साइन इज in upper domain, okay, no. So some, okay, Marvi is saying sir x belongs to pi by 2 to pi by 2. Okay, appropriate domain. Okay, let's see why it is not x actually. Sorry, let I am taking x is equal to pi by 3. Okay, let's take x is equal to pi by 3. ठीक है. Now if I'll ask you to find sine inverse of pi by 3, then what you will say? It is sine inverse of pi by 3. Is it or not? Sine inverse of pi by 3 is root, sine of pi by 3 is root 3 by 2. Yes or no? So sine inverse of root 3 by 2, which is again giving you what? Pi by 3. Yes or no? So here I am getting y is equal to pi by 3, or we can write it as
y is equal to x, because pi by 3 we have taken, that is x. So y is equal to x here I am getting, right? Same input, I am getting the same input as my output. Is it or not? Let's, now I am taking x is equal to 2 pi by 3. Okay, now test for this. Okay, verify for this. Y is equal to sine inverse of sine of 2 pi by 3. ठीक है? So what is happening here? I am getting sine inverse of sine of 2 pi by 3 is root 3 by 2. So sine inverse of root 3 by 2 is what? Pi by 3. है कि नहीं? Because in range of sine inverse of x is minus pi by 2 to pi by 2. So pi minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में मुझे क्या मिलेगा? Sine inverse of root 3 by 2 is pi by 3. So here I am getting y is equal to pi by 3. Okay, but it is not equal to x. It is not equal to x. But here we are getting y is equal to x. Here in the first case we are getting sine inverse of x is equal to sine inverse of x. Sine inverse of sine x is equal to x I am getting. ठीक है? In the first case I am getting sine inverse of sine x is equal to x. But in the second case we are getting sine inverse of sine x is not equal to x. So two different cases we are getting. है कि नहीं? हमें दो दो डिफरेंट केस मिल रहा है कि नहीं? चलो, तो ये क्यों हो रहा है? ये चीज जो डिफरेंस है ये क्यों हो रहा है, उसको स्टडी करें. ठीक है, चलो, ये सबको तो पता होगा ना. ये मेरा जो फर्स्ट वन इज साइन एक्स की ग्राफ है, एंड सेकेंड वन किसका ग्राफ है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की ग्राफ है. तो ये देखो, जब भी मैं रूट 3 बाई 2 को मैं ले रहा हूं, सपोज y इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 मुझे जैसे मिला ना, यहाँ y इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 में ले रहा हूँ, इनपुट में दे रहा हूँ y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू, मुझे आउटपुट क्या मिला, y इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2. ठीक है, तो अगर मैं y इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 का लाइन ड्रॉ करूं, तो ये देखो तुम्हें कितने ऐसे वैल्यूज मिलेगा जो रूट 3 बाई 2 में है ना, जो सॉरी जो x की बहुत सारे काफी सारे वैल्यूज के लिए मुझे y रूट 3 बाई 2 मिल रहा है कि नहीं? x की काफी सारे वैल्यूज के लिए y जो है, y की वैल्यू काफी सारे वैल्यूज मुझे रूट 3 बाई 2 मिल रहा है. बट इन केस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, व्हाट यू आर गेटिंग, साइन इनवर्स ऑफ x की केस में जो डोमेन है उसका -1 से 1 के बीच में है, एंड जो रेंज है दैट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ठीक है, तो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स को इनपुट ये दे दूं, क्या अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कोई भी इनपुट दे दूं, तो मुझे सपोज ये रूट 3 मिल रहा है, रूट 3 बाई 2 यहाँ पे मिल रहा है मुझे. ठीक है, रूट 3 बाई 2 ये पॉइंट मुझे मिल रहा है. ठीक है, तो जैसे कि 0 पे नहीं, इसमें पाई बाई 3 में. ओके, ये वैल्यूज तुम्हें मिल रहा है रूट 3 बाई 2. ठीक है, रूट 3 बाई 2 वैल्यूज ये मिल रहा है तुम्हें. तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग ओनली रूट 3 बाई 2 हियर, इन दिस केस ओनली रूट 3 बाई 2, बिकॉज इसका रेंज जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है. ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है जो दैट इज रूट 3 बाई 2. तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स हो रहा है, क्योंकि जो एक्स है दैट इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. बट इन दिस केस साइन एक्स के केस में क्या हो रहा है ना, अगर मैं काफी सारे एक्स के वैल्यूज के लिए मुझे रूट 3 बाई 2 मिल रहा है बहुत सारा. ठीक है, रूट 3 बाई 2 मिल रहा है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये इसका रेंज जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो और डोमेन जो है -1 से 1 के बीच में है. तो ये बोल रहा है कि भाई एक ही एक्स की एक वैल्यू के लिए मैं एक ही बार रूट 3 बाई 2 दे सकता हूँ, ज्यादा टाइम में नहीं दे सकता हूँ. बस साइन एक्स क्या कर रहा है ना, रूट 3 बाई 2 को जो वैल्यू है ना, वो एक्स की काफी सारे वैल्यूज के लिए तुम्हें मिल सकता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, है ना? चलो, ये तो पता था तुम लोगों को. तो रिमेंबर, इंपोर्टेंट नोट इज, यहाँ पे जो नोट है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स when it is happening, sin inverse of sin x is x. कब ये होगा ना, जब x जो है ना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगा. समझ में आ रहा है सबको?
साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स is equal to x when x belongs to this x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. ये याद रखो तुम, ठीक है। और इन जनरली we can say any trigonometric function in case of any trigonometric inverse trigonometric functions, है ना, in place of t we can take any inverse any trigonometric functions like we can take cos sec, है ना, कोई भी inverse trigonometric functions of trigonometric functions is equal to x when x जो है ना इनपुट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो साइन टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो ना इसका रेंज क्या है, ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की रेंज क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या होगा, ये तो आर ले लेगा, डोमेन बोलेगा कि भाई मैं आर ले सकता हूँ, एक्स के जगह में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, आर ले सकता हूँ, ठीक है, आर ले सकता हूं। लेकिन साइन इनवर्स बोलेगा कि मुझे कुछ भी दे दो भाई, लेकिन मेरा जो रेंज है ना वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा वो। समझ में आ रहा है सबको? तो जब ये जो एक्स है, जब ये एक्स रेंज के बीच, इसका रेंज के बीच में रहेगा तब वो एक्स बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? सपोज यहाँ पे मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ में पूछूं तुम्हें, ठीक है, तो ये एक्स कब होगा, ये एक्स कब होगा ना, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to pi, yes or no, x belongs to 0 to pi because range of cos inverse of cos x is 0 to pi. समझ में आ रहा है सबको? Is it or not clear everyone? If yes, please respond to the chat box everyone guys. If yes, please respond to the chat box everyone. बोलो, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में सबको? चलो लेट्स मूव नाउ। इफ विल analyze all the values of inverse, that sine inverse of sine of x in all the four quadrants. So what we are, why we are doing all these things, the main aim is to draw the graph of sine inverse of sine of x, right? ठीक है, चलो तो देखते हैं। so first quadrant में this is my 0, this is my pi by 2, this is pi or minus pi, we can say this is minus pi by 2. okay, so in the first quadrant I am taking x is equal to pi by 3, ठीक है, x is equal to pi by 3 I am taking, ठीक है। तो y is equal to साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x, साइन ऑफ पाई बाई 3 में ले रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 3 में ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा ना, साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2, तो व्हिच इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या हो रहा है, साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2 इज पाई बाई 3. So what you are getting here, we are getting y is equal to x in the first quadrant. In the first quadrant, when x belongs to 0 to pi by 2, 0 से pi by 2 के बीच में अगर x लाई करेगा तो y is equal to x मिलेगा तुम्हें. Okay, if we'll come to the fourth quadrant, suppose I am taking in the fourth quadrant I am taking x is equal to pi minus pi by 3, right? x is equal to minus pi by 3 suppose I am taking. So इसमें क्या होगा ना, y is equal to sin inverse of sin of minus pi by 3. ओके, तो मुझे क्या मिलेगा ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 इज माइनस रूट 3 बाई 2. ओके, तो यहां से मुझे मिला ना, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू, आई एम गेटिंग दैट इज माइनस पाई बाई 3. तो इसमें देखो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, जेएनबी पंचमहल, वेरी गुड, है ना। इसमें भी मुझे क्या मिल रहा है ना, x मुझे x में क्या लिया था ना, x इज इक्वल माइनस पाई बाई 3 लिया था। समझ में आ रहा है सबको? तो यहां से भी, यहाँ पे भी मुझे x मिल रहा है, तो y is equal to x in the fourth quadrant also I am getting y is equal to x. Is it clear to everyone guys? Y is equal to x I am getting in the fourth quadrant. Okay, now come to the second quadrant. अगर मैं second quadrant में चले जाऊं तो x is equal to, suppose I am taking 2 pi by 3, right? तो 2 pi by 3 में x is equal to 2 pi by 3 ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, y is equal to साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 pi by 3 में ले लिया, तो ये जो वैल्यू है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 2 pi by 3 इज रूट 3 by 2. इसमें क्या मिला मुझे ना, पाई बाई 3 मिला, है कि नहीं? तो y इज इक्वल टू व्हाट आई एम गेटिंग, y इज इक्वल टू, आई गॉट y इज इक्वल टू पाई बाई 3 इन पाई बाई 2 टू पाई, आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू पाई बाई 3.
but x I have taken x as 2 pi by 3. So in place of pi/3 what can I write? मैं क्या लिख सकता हूं? मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं क्या, पाई माइनस एक्स। देखो अगर मैं इन दिस इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स में मैं x इज इक्वल टू 2 पाई/3 डाल दूं, सॉरी पाई/3 डाल दूं, तो मुझे x y मिल रहा है क्या? y इज इक्वल टू पाई/3 मिल रहा है क्या? मिला कि नहीं? है कि नहीं? सोचो अच्छे से, पाई-2 पाई/3, तो क्या मिलेगा मुझे? पाई/3 मिलेगा कि नहीं? तो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स हो रहा है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, कम टू द इन द फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया काम। इन द व्हाट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट इफ आई टेक एंगल as -2 पाई/3, सपोज आई एम टेकिंग, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टू -2 पाई/3, राइट? तो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 मुझे मिला, है कि नहीं? सो यहां से मुझे मिल रहा है ये y इज इक्वल टू -पाई/3 मुझे मिला, -पाई/3। तो इसमें हाउ आई कैन राइट y इज इक्वल टू -पाई/3? कैसे मैं x को यूज करके लिख सकता हूं, ये बताओ मुझे। तो आई कैन आई राइट y इज इक्वल टू, कैन आई राइट y इज इक्वल टू -पाई-x, -पाई-x कैन आई राइट? बोलो। और -x-पाई यू कैन से, है ना? समझ में आ रहा है सब ना? तो 0 से पाई/2 के बीच में मुझे क्या मिला? y इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे टोटल फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे y इज इक्वल टू पाई-x मिला, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे मिला क्या ना, y इज इक्वल टू -पाई-x मिल गया मुझे। समझ में आ रहा है सबको? तो ये चीज को ना, तो ये चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। मैं उसको फंक्शन में कैसे लिखूं? ठीक है, देखो ऐसे लिख सकते हैं उसको। ओके, देखो ना, व्हेन x बिलोंग्स टू -पाई/2 टू पाई/2, देखो when x belongs to -पाई/2 to पाई/2, मतलब in fourth and first quadrant, in fourth and first quadrant what you are getting, in fourth and first quadrant what you are getting, y is equal to x मिल रहा है मुझे। तो इस केस में मैं, मेरा जो फंक्शन की वैल्यू है वो x हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सो when x belongs to, when x belongs to, suppose I am taking the second quadrant, pi/2 to pi, okay, pi/2 to pi, ओके, पाई/2 से पाई/2 से पाई के बीच में अगर एक्स लाई करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा ना, मेरा जो फंक्शन है दैट विल बी पाई-x, यस और नो, पाई-x। एंड व्हेन x बिलोंग्स टू -पाई/2 पाई -पाई/2, -पाई टू पाई/-पाई/2, तो मेरा जो फंक्शन है वो बन गया -x-पाई। ये समझ में आ गया सबको? अंडरस्टूड? यस और नो? Please write in the chat box, everyone, if it is clear to all. Guys, is it clear why we are doing all these things? Now you will enjoy actually when we'll draw the graph of sin inverse of sin x. Actually ये जो टॉपिक है ना, पूरी तरह से ग्राफ के ऊपर ही, अगर तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ना सॉल्व करना है क्वेश्चन को, अगर ग्राफ पता होगा तो तुम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको क्लियर? बोलो क्विकली, प्लीज रेस्पॉन्ड टू द चैट बॉक्स एवरीवन, अगर सबको समझ में आ गया तो। चलो बहुत ही अच्छा, चलो चलो ठीक है, ठीक है, ओके, गुड गुड गुड, गुड आदित्य, गुड हार्दिक, जिग्नेश, कौशिक, हार्दिक, प्रणाली, जेनी, पंचमल, क्लियर एवरीवन? ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ठीक है, मैं ग्राफ बनाऊंगा अभी। चलो, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सेस है एंड दिस इज माय ओरिजिन। हो गया? तो ये बताओ मुझे क्या हो रहा है?
-π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से when x belongs to -π, suppose this point is -π/2 and this point is π/2. Okay, so minus when x belongs to -π/2 to π/2, so what is y you are getting? अगर x जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, तो y तुम्हें क्या मिल रहा है? जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में एवरीवन। y इज इक्वल टू x। अच्छा, y इज इक्वल टू x की जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा? y इज इक्वल टू x की जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा? लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इज इट और नॉट? y लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो लाइन सेगमेंट जो मिलेगा मुझे y पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड इसका जो रेंज है, रेंज क्या है बेटा? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? बताया था तुम लोगों को, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एवरीवन? रेंज क्या है? 0 -π/2 से π/2 है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो ये ले लिया मैं π/2, ये ले लिया मैं -π/2। टाइम नहीं है, जल्दी करेंगे, ठीक है? तो सपोज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ओके, नाउ आई एम ज्वाइनिंग these 2 points। ये मेरा लाइन मिल गया मुझे y इज इक्वल टू x, लाइन सेगमेंट मुझे मिला y इज इक्वल टू x, राइट? एंड नाउ विल गो थ्रू द सेकेंड थिंग, व्हेन π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में, ठीक है? ये बताओ, π/2 से पाई के बीच में जो y की वैल्यू मुझे मिल रहा है, y क्या मिल रहा है तुम्हें? π/2 से पाई के बीच में y क्या हो रहा है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में एवरीवन। π/2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है? पाई माइनस एक्स हो रहा है ना? एक्स नॉट एक्स माइनस पाई, पाई माइनस एक्स, यस, पाई माइनस एक्स। तो इफ ओके, अगर मैं ये जो पाई माइनस एक्स को, वेरी गुड वेरी गुड, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स को अगर मैं ऐसे लिखूं, y इज इक्वल टू -x प्लस पाई, ओके, मैं अगर ये लाइन की जो इक्वेशन है उसको इस टाइप से लिखूं, तुम्हारे समझ मतलब तुम अच्छे से समझने के लिए, अगर मैं ये लाइन को y इज इक्वल -x प्लस पाई लिख दूं तो क्या हो जाएगा? देखो, -x प्लस पाई, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप कैसा आएगा? इसका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ये सब -1 हो जाएगा। स्लोप माइनस y इज इक्वल -x प्लस पाई का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव स्लोप है और लाइन क्या है ना? -x प्लस पाई है। तो ये जीरो कहां बन रहा है? y इज इक्वल टू जीरो कब हो रहा है ना? x इज इक्वल टू पाई में जीरो हो रहा है। तो ये तो मेरा पाई है ना, ये तो मेरा पाई है। द लाइन which is having negative slope and passing through the point pi, तो ये जो लाइन होगा वो कैसे हो जाएगा बेटा ना? ऐसे, इस टाइप से हो जाएगा, ये कि नहीं? तो ये जो लाइन होगा इसका ना, ये इक्वेशन क्या होगा ना? y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस पाई। देखो, -x प्लस पाई मीन्स पाई में वो जीरो हो रहा है ना, पाई में वो जीरो हो रहा है। सिमिलरली, चलो, अगर सिमिलरली मैं तुम्हें ये पूछूं, सही तो है ना? हाँ, सिमिलरली अभी और क्या बच गया मेरे पास ना? -π से -π/2, -π से, सपोज दिस पॉइंट इज -π, ओके, दिस पॉइंट इज -π। सो -π से -π/2 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है? यहां से देखो और बताओ, -π से -π/2 के बीच में फंक्शन जो हो रहा है दैट इज -x -π। तो y इज इक्वल टू -x -π। स्लोप तो नेगेटिव है ना, स्लोप इज नेगेटिव, एंड व्हेन इट बिकम्स जीरो ना, एट x इज इक्वल टू पाई -π, एट x इज इक्वल -π दिस बिकम्स जीरो, ओके, एट x इज इक्वल -π दिस बिकम्स जीरो। तो लाइन कैसे होगा बेटा? लाइन तो कैसे होगा? नेगेटिव स्लोप, स्लोप मींस पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू -π, तो ये हो गया, ठीक है?
यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? जल्दी से चार्ट में लिख दो, जल्दी से चार्ट में लिखो। यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया बेटा? क्लियर एवरीवन? देखो अच्छे से ग्राफ को समझो। अगर ये ग्राफ हो गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर में। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक चीज मैं तुम्हें पूछूं, कंपोजिट फंक्शन में एक चीज हम लोग पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे ना? कंपोजिट फंक्शन में अगर कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सपोज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, एंड ये जी ऑफ एक्स की जो अगर पीरियड जो है, जी ऑफ एक्स की अगर पीरियड सपोज टी हुए, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की भी पीरियड टी हो जाएगी। ये कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज है पीरियडिक फंक्शन में। ठीक है, अगर जी ऑफ एक्स की पीरियड टी है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की पीरियड भी टी हो जाएगा। आ गया समझ में सबको? दैट मीन्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस, मैं ये चीज तुम्हें क्यों बता रहा हूं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स में मुझे पता है कि साइन एक्स इज पीरियडिक। अगर साइन एक्स पीरियड है, पीरियडिक है, तो साइन एक्स की पीरियड क्या है ना, साइन एक्स की पीरियड है 2 पाई। अगर साइन एक्स की पीरियड 2 पाई है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की पीरियड क्या हो जाएगा ना, 2 पाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये ग्राफ में देखो, जो ग्राफ में ड्रॉ अभी तक ड्रॉ किया हूं, तो वो जो ग्राफ है वो माइनस पाई से लेकर पाई तक है, माइनस पाई से लेकर पाई तक है कि नहीं? ये बताओ मुझे, माइनस पाई से लेकर पाई तक है कि नहीं? तो माइनस पाई से लेकर पाई तक कितना हो रहा है ये लेंथ? ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है इसका लेंथ कितना है ना, 2 पाई लेंथ। ये कितना लेंथ है ना, 2 पाई लेंथ है कि नहीं? अगर ये पीरियडिक फंक्शन है और मुझे एक पीरियड में, एक जो इंटरवल पीरियडिक इंटरवल में मुझे ग्राफ ऑलरेडी मिल चुका है, दैट मीन्स मेरा ग्राफ ही बन गया भाई। क्योंकि तुम पूछ सकते हो ना सर पाई के बाद क्या होगा, माइनस पाई के बाद क्या होगा, तो आराम से बता सकते हैं ना, ये पीरियडिक फंक्शन है एंड मुझे माइनस पाई से पाई के बीच में मुझे लेंथ मिल गया 2 पाई लेंथ। तो 2 पाई लेंथ में मुझे ऑलरेडी ग्राफ पता है। अगर मुझे पीरियड, एक पीरियड में ग्राफ पता है तो वो ग्राफ को उठा के मैं चिपकाते जाऊंगा तो मुझे पूरी ग्राफ मिल जाएगा। ये सर नो एवरीवन, समझ में आ गया सबको? तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा ना, ग्राफ कैसे बनेगा, आ गया सबको समझ में? ग्राफ कैसे बनेगा बोलो ना, ग्राफ बनेगा ऐसे, देखो ग्राफ बनेगा ऐसे, इस टाइप से, है ना? तो ये हो गया मेरा ग्राफ। सो व्हाट इज द, ये ग्राफ क्या हुआ ना, साइन इनवर्स ऑफ, वाह वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल ग्राफ, है ना? साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। और बाकी सारे ग्राफ ना तो इजीली हो जाएगा, आराम से तुम कर दोगे। ये समझ में आ गया सबको बेटा? बोलो ये समझ में आ गया सबको? आ गया सबको ग्राफ समझ में आ गया? एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स अगर ये समझ में आ गया तो। कोई डाउट है इसमें, ग्राफ में कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। आ गया समझ में सबको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द परफेक्ट ग्राफ। यहाँ पे भी हम परफेक्टली किए हैं, और एक बार उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, ओके वेरी गुड, थैंक यू प्रणाली। चलो ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की ग्राफ है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछूं, चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछूं कि ये मुझे बताओ साइन इनवर्स ऑफ, ये बता दो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 7? मैं ग्राफ को यूज करके कैसे बनाऊंगा ये वैल्यू? चलो ये लास्ट वाला ग्राफ, बड़ा वाला ग्राफ है, इसमें करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 7, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम ग्राफ को पढ़े। अच्छा ये जो 7 है, देखो पाई का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई का वैल्यू कितना है? 3.141, है ना? 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 3.14। अच्छा 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा?
3 पाई/2 की वैल्यू कितना हो जाएगा ना, ये हो गया 3 × 2 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग अपन 2, है ना। नो, 3 × पाई इज 3, 9 पॉइंट समथिंग अपन 2, ठीक है, 9 पॉइंट अपन 2। तो ये हो गया 2 पाई कितना हो गया, 2 पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 पाई/, अच्छा 7 मुझे चाहिए ना, 7 चाहिए एक्चुअली, 7। 2 पाई क्या क्या हो जाएगा ना, 2 पाई इज 3 × 3, ओके 6.28। हाँ, अच्छा ये देखो 2 पाई इज 3.14 × 2, है ना, 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 6 पॉइंट समथिंग मीन्स 7 यहां कहीं लाया करेगा भाई। ये 7 सपोज मैं मान लेता हूं, ये 7 है मेरा, ठीक है, ये 7 है मेरा। अगर ये 7 है तो अगर मुझे ये लाइन की इक्वेशन पता चल गया ना, ये लाइन की अगर इक्वेशन मुझे पता चल गया तो आराम से मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं, है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये लाइन की इक्वेशन क्या, ये तो मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स है, ये मुझे, ये क्या है ना, y इज इक्वल टू -x, जीरो कहां पे हो रहा है, +पाई, प्लस -x+पाई, ठीक है, ये जीरो हो रहा है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है तो x है, y इज इक्वल टू एक्स, जीरो कहां पे हो रहा है ये लाइन ना, -2 पाई पे, y इज इक्वल टू -2 पाई हो गया, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू x-2 पाई इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अगर इनपुट मेरा 7 है और फंक्शन जो है दैट इज x-2 पाई, तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा ना 7-2 पाई, है कि नहीं, 7-2 पाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, बोलो जल्दी बोलो, चैट में बताओ, आ गया समझ में। जो 7 है वो 2 पाई से 5/2 के बीच, 5/2 के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं। तो अगर ये 7 लाई कर रहा है तो 7 की जो x इज एट x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू कितना होगा ना, एट x इज इक्वल टू 7 विल पुट, अगर x के जगह मैं 7 पुट कर दूं तो मुझे 7-2 पाई मिल जाएगा। तो लाइन के मेन इंपोर्टेंट चीज है कि तुम्हें लाइन की इक्वेशन निकालना चाहिए, निकालना आना चाहिए। तो ये इक्वेशन की लाइन, इक्वेशन बताओ, ये लाइन की इक्वेशन बताओ मुझे अभी चैट बॉक्स में, एवरीवन प्लीज राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना, -x, है ना, इसका स्लोप हो जाएगा -x, जल्दी से बताओ। और जीरो कहां पे हो रहा है, ये जीरो कहां पे हो रहा है, -पाई पे हो रहा है क्या, बोलो जल्दी से, +पाई में हो रहा है, -पाई में, कहां पे जीरो हो रहा है ये, तो ये लाइन का, ये इक्वेशन के लाइन क्या हो जाएगा, -x+पाई हो जाएगा। नो, एट x इज इक्वल टू -पाई, ये जीरो हो रहा है ना, एट x इज इक्वल टू -पाई ये जो रहा है, तो ये हो जाएगा x-पाई, ठीक है, y इज इक्वल टू -x-पाई हो जाएगा। लाइन की इक्वेशन निकलना आना चाहिए सबको, ठीक है, इजी है, इजी है भाई, इजी है, ठीक है। चलो चलो चलो, ये अगर समझ में आ गया सबको, फिर चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, ये हो गया सबका। नाउ cos ऑफ x, इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे बेटा, cos ऑफ x, ठीक है। और ये बता रहा है कि इसका जो डोमेन है वो आर है, x बिलोंग्स टू आर, एंड रेंज जो है दैट इज 0 to पाई, रेंज जो है दैट इज 0 to पाई, एंड पीरियड तो 2 पाई सबको पता है, क्योंकि cos x की पीरियड तो 2 पाई है, तो cos ऑफ x की पीरियड क्या हो जाएगा ना 2 पाई हो जाएगा, पीरियड पता है सबको 2 पाई है, एंड रेंज जो है 0 to पाई। तो y इज इक्वल टू cos x is equal to x by using our properties. This is equal to x when x belongs to 0 to पाई, yes or no, when x belongs to 0 to पाई, is it or not। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया सबको, नाउ ग्राफ बनाए, जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं, फिर तुम आराम से अभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। देखो मैं तो बता दूंगा और तुम आराम से कर सकते हो। सपोज दिस पॉइंट इज 0 and this point is what, pi. So at when x belongs to 0 to पाई, my function becomes y is equal to x, is it or not, and इसका रेंज क्या है 0 to पाई।
सपोज दिस पॉइंट इज पाई, ठीक है। तो मेरा जो क्या हो रहा है, मेरा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स कहां हो रहा है ना, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, दैट मीन्स ये हो गया, ठीक है। ओके, 0 से पाई के बीच में y इज इक्वल टू एक्स हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई y इज इक्वल टू एक्स, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। अगर यहां तक समझ में आ गया फिर तो देखो अभी आराम से तुम बता सकते हो कि अच्छा, ये जो cos ऑफ x है ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, समझो अच्छे से। cos ऑफ x जो है इट्स एन इवन फंक्शन, cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x, है कि नहीं, इट्स एन इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तो cos ऑफ माइनस एक्स ये भी इवन फंक्शन हो जाएगा। ओके, कॉस इन बिकॉज माइनस जो साइन है ना वो कॉस के अंदर क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये भी इवन फंक्शन हो रहा है। अगर इवन फंक्शन हो रहा है तो इवन फंक्शन की ग्राफ की नेचर कैसा है ना, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन is always symmetric about origin, yes or no, yes or no, graph of even sorry not origin, always symmetric about y axis, है ना। जो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन होता है ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सॉरी वाई एक्सिस, ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो इसका जो ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। तो दैट मींस ग्राफ, ये जो ग्राफ सिमेट्रिक मींस इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो जल्दी से। तो इस टाइप से ग्राफ इस तरफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस पाई, ये हो जाएगा मेरा माइनस पाई, आ गया सबको समझ में। देखो ग्राफ इज 2 पाई पीरियडिक, है ना, फंक्शन इज 2 पाई पीरियडिक, तो माइनस पाई से पाई के बीच में लेंथ क्या है ना, 2 पाई लेंथ है, लेंथ इज 2 पाई। अगर ये 2 पाई लेंथ मुझे मिल गया तो इसी ग्राफ को अगर मैं चिपकाते जाऊंगा तो मुझे पूरी ग्राफ मिल जाएगा, समझ में आ रहा है सबको। तो ये जो ग्राफ है उसको अगर मैं चिपकाते जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा ना, पूरी ग्राफ ऑफ cos x मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ होगा बेटा, cos इनवर्स ऑफ x की ग्राफ जो है ना इस टाइप से होगा, समझ में आ रहा है सबको। वेरी गुड पंचमल, जेएनबीसी पंचमल, एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल गाइस, प्लीज रेस्पॉन्ड टू चैट बॉक्स एवरीवन इफ इट इज क्लियर टू ऑल। लेट्स विल मूव टू द tan इनवर्स ऑफ tan x। ये अगर सबको समझ में अच्छे से आ गया, चलो ठीक है। तो ये है उसका ग्राफ, देख लो सब, ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x, पीरियड इज 2 पाई, है ना, रेंज इज 0 टू पाई, ओके, रेंज इज 0 टू पाई, है ना, समझ में आ रहा है सबको। ओके चलो लेट्स मूव टू tan इनवर्स ऑफ tan x। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ tan x, तो इसका डोमेन तो मुझे पता है, दैट इज r माइनस और मल्टीपल पाई बाई 2, एंड रेंज क्या है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। चलो ठीक है, सो इज अ पीरियड विथ पाई, सो इसका पीरियड क्या है ना, tan x की पीरियड मुझे पता है ना, इसका पीरियड जो है वो पाई पीरियडिक होता है tan x। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x क्या हो जाएगा ना, पाई पीरियडिक हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ कंपोजिट फंक्शन, है ना। एंड ऑल्सो tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, है ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अगर x लाई करेगा तो tan इनवर्स ऑफ tan x जो है ना वो x हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से देखो, ये है, तो माइनस पाई बाई 2 से, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से, ये देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में मैं ले लिया, एंड मेरा जो y ऑफ x रेंज क्या है ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, ठीक है। एंड माइनस पाई बाई 2 से पाई, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 y इज इक्वल टू x,
तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू एक्स, बट minus pi by 2 and pi by 2 are excluded. Minus pi by 2 and pi by 2 are excluded. That's why I'm giving hollow circle. Pi by 2 में ये डिफाइन ही नहीं है, माइनस पाई बाई 2 में भी ये डिफाइन नहीं होगा. सिमिलरली इसका पीरियड क्या है ना, इसका पीरियड जो है वो पाई पीरियड के, इसका जो पीरियड है लेंथ है पाई पीरियड के. अगर ये पाई पीरियड के तो ये जो ग्राफ मुझे मिला ना, ये जो ग्राफ मिला, यही ग्राफ को अगर मैं शिफ्ट करते जाऊंगा ना, शिफ्ट करते जाऊंगा तो मुझे पूरी tan x की ग्राफ, tan इनवर्स ऑफ tan x की ग्राफ मिल जाएगा. आया समझ में सबको? क्लियर? आया सबको समझ में? पीरियड क्या है ना, पाई है ना. माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में y क्या हो रहा है ना, x हो रहा है. पीरियड पाई है, तो वो सेम ग्राफ को मैं शिफ्ट करते जाऊंगा तो मुझे ग्राफ मिल जाएगा. क्लियर एवरीवन? इफ इट इज क्लियर गिव मी थम्स अप एवरीवन प्लीज. इफ इट इज क्लियर गिव मी थम्स अप जल्दी बोलो. हो गया सबका? चलो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. थैंक यू ऑल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स. ओके, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स में पीरियड क्या है ना, इसका पीरियड जो है वो भी पाई पीरियड के है ना. कॉट एक्स की पीरियड क्या है, पाई है. तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स की पीरियड क्या हो जाएगा ना, पाई हो जाएगा. एंड दिस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई. ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई. सो 0 से पाई के बीच में अभी मैं देखूंगा क्या, 0 से पाई के बीच में y इज इक्वल टू एक्स हो रहा है. y इज इक्वल टू एक्स कहां बनना है ना, 0 से पाई के बीच में, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई. ठीक है, यहां से तो इसका लेंथ क्या है ना, इसका जो लेंथ है दैट इज पाई लेंथ. अगर ये पाई लेंथ में जो भी ग्राफ तुम्हें मिला ना, और ये डिफाइन कहां नहीं है, कहां डिफाइन नहीं है ये ना, दिस इज नॉट डिफाइन एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. 0 में नहीं है, पाई में नहीं है, 2 पाई में नहीं है, माइनस पाई में नहीं है, माइनस 2 पाई में नहीं है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई एट ऑल दिस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आई एम गिविंग हियर hollow circle, because at all these points this graph is not defined, this function is not defined. Is it clear to everyone? तो ये जो 0 से पाई के बीच में जो भी ग्राफ मिला तुम्हें, y इज इक्वल टू एक्स जो ग्राफ मिला, सेम ग्राफ को अगर मैं चिपकाते जाऊंगा, बिकॉज इट इज अ पीरियडिक फंक्शन, तो सेम ग्राफ को मैं चिपकाते जाऊंगा इंटरवल, पाई इंटरवल में, तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? प्लीज रेस्पॉन्ड टू द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल गाइस. इफ इट इज क्लियर टू ऑल प्लीज रेस्पॉन्ड टू द चैट बॉक्स एवरीवन. इफ इट इज क्लियर टू ऑल. कॉट इनवर्स हो गया बेटा? कॉट इनवर्स हो गया सबका? ठीक है, अगर कॉट इनवर्स हो गया, नाउ विल मूव थ्रू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स. अच्छा, ये जो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स में जाने से पहले ना, तो मैं एक चीज तुम्हें, एक प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, वो चीज को मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं. दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स. ठीक है, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स. देखो यहाँ पे अगर √2 तुम ले जाओ, यहाँ पे 1/√2 ले जाओ, तो दोनों सेम वैल्यूज देने वाले हैं. तो मैं उसको प्रूव कैसे करूंगा ना, उसको मैथमेटिकली हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स ले लिया मैं. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूं, ये फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूं, तो ये क्या हो जाएगा ना, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इज साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cosec x. So this is also equal to 1 upon cosec x is sin inverse of sin x. तो मुझे मिला क्या बेटा, देखो cosec inverse of a cosec x, y is equal to, finally I am getting y is equal to cosec inverse of cosec x is equal to sin inverse of sin x. ठीक है, sin inverse of sin x. समझ में आ रहा है सबको? क्लियर एवरीवन? ओके, तो जो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन cosec इनवर्स ऑफ cosec x is mostly similar to
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, बट नॉट देयर सेम, दे आर नॉट सेम, बट मोस्टली देयर ग्राफ आर सेम। जो ग्राफ मिलेगा तुम्हें कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स की, वो सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे ना, ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से तो तुम्हें प्रूफ मिल गया ना कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो ग्राफ बिल्कुल सेम ही बनने वाला है। बट कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इज नॉट डिफाइन एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जीरो में डिफाइन नहीं होगा, पाई में डिफाइन नहीं होगा, 2 पाई में डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, 3 पाई में डिफाइन नहीं होगा, पाई में डिफाइन नहीं होगा, -2 पाई में डिफाइन नहीं होगा। क्यों? वाई दे आर नॉट डिफाइन एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई? बिकॉज कॉसेक एक्स जो है ना, कॉसेक एक्स जो है वो भी एन पाई में डिफाइन नहीं है। अगर कॉसेक एक्स एन पाई में डिफाइन नहीं है तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स भी एन पाई में डिफाइन नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? आया समझ में? क्लियर? इफ इट इज क्लियर टू ऑल गाइस, प्लीज रेस्पॉन्ड टू द चैट बॉक्स एवरीवन। अगर सबको समझ में आ गया तो रेस्पॉन्ड कर लो चैट बॉक्स में एवरीवन, प्लीज जल्दी से रेस्पॉन्ड करो। और एक ग्राफ बचा है हमारा, जल्दी जल्दी। ओके, ये समझ में आ गया सबको? सिमिलर प्रोसेस में वी कैन प्रूव secant इनवर्स ऑफ secant ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos एक्स ऑल्सो। ठीक है, यहां से भी ये प्रूफ हो जाएगा, बट ग्राफ में मतलब दोनों ग्राफ सिमिलर हो जाएंगे, मोस्टली सेम हो जाएंगे ग्राफ, और ज्यादा कुछ समझना नहीं पड़ेगा। याद रखो cosec इनवर्स ऑफ cosec x की जो ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ के साथ पूरा सिमिलर है, बाकी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में और एन पाई में वो डिफाइन नहीं होता है cosec इनवर्स ऑफ cosec x। सिमिलरली हियर आल्सो सेक इनवर्स ऑफ सेकेंड एफ एक्स में क्या होता है ना, वो ग्राफ जो है दैट इज मोस्टली सेम एज cos इनवर्स ऑफ cos x, बट इट इज नॉट डिफाइन एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में नॉट डिफाइन होगा, जैसे यहाँ पे होगा पाई बाई 2 में डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल देना पड़ेगा तुम्हें, -पाई/2 में डिफाइन नहीं होगा, -3 पाई/2 में डिफाइन नहीं होगा, -5 पाई/2 में डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, -3 पाई/2 में डिफाइन नहीं होगा, 5 पाई/2 में डिफाइन नहीं होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा क्या ना, सेकेंड इनवर्स ऑफ सेकेंड ऑफ एक्स। इसका भी पीरियड क्या होता है ना, पीरियड जो है दैट इज 2 पाई। पीरियड भी उसका, पीरियड जो है ना इसका भी पीरियड 2 पाई होता है, बिकॉज सेकेंड ऑफ एक्स की पीरियड 2 पाई है। और यहाँ पे भी इन दिस केस ऑल्सो पीरियड इज 2 पाई। ठीक है, 2 पाई पीरियड के होते हैं, क्योंकि वाई, क्योंकि ये cosec एक्स की पीरियड भी 2 पाई होता है। समझ में आ रहा है सबको? ये सारे ग्राफ सबको समझ में आ गया? इफ यस प्लीज गिव मी थम्स अप एवरीवन प्लीज गाइस। अगर सबको समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो भाई। चलो, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड 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 गुड। अच्छा 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 अच्छा, टाइम है हमारे पास, हाँ 2 मिनट है, तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, जल्दी से कर लो। समेशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल -1 to 4 tan इनवर्स ऑफ tan एक्स, तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले ना। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 0 -1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 4। अच्छा, तो tan की जो ग्राफ है सबको याद है ना, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स की ग्राफ सबको पता होगा क्या होता है। अरे ग्राफ छोटा सा बना लो ना, ये ग्राफ है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में वो y इज इक्वल टू एक्स हो रहा था, ठीक है, और कैसा हो रहा था, ये पाई से लेकर इस टाइप से ग्राफ तुम्हें मिल रहा था ना, है ना, 0 -पाई/2 से पाई, ये हो जाएगा पाई,
ठीक है, ये हो जाएगा 3π/2, है ना। और बाकी इस टाइप से ग्राफ तुम्हें मिल रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये ग्राफ में तुम बता सकते हो जीरो में क्या हो रहा है, -1, -1 लाई कहां करेगा बेटा, -1 कहां लाई करेगा, -1 यहीं कहीं लाई करेगा, ठीक है। -1 जो है यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ये ग्राफ क्या है, y=x है, तो -1 ये क्या हो जाएगा ना, -1 ही हो जाए, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -1 इज -1, खुद से कर दो, ये हो जाएगा -1 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 0, ये भी 0 है ना, 0 तो वही सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये भी 0 है। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 0 इज 0, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 1, 1 यही कहीं लाई करेगा ना, तो 1 भी वही सेम ये, तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 1 इज 1, ओके, प्लस 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 प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ना, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2, पाई का वैल्यू क्या होता है, या अच्छा यहाँ पे लाई करेगा कहीं, तो अगर 2 ये लाई करेगा तो 2, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, y=, स्लोप तो सेम है, x माइनस पाई, है ना, y=x-पाई, तो x क्या हो गया ना 2 प्लस 2 - पाई, ठीक है। और 3 कहां लाई करेगा ना, 3 पॉइंट, पाई की वैल्यू क्या है 3.141, 3 यहीं कहीं लाई करेगा भाई, ये 3 हो जाएगा, 3 वही सेम प्लस 3 - पाई प्लस, अच्छा 4, 4 कहां लाई करेगा, 4 दैट इज पाई से थोड़ा आगे होगा, ये 4 हो जाएगा, तो सेम लाइन पे 4 - पाई, तो क्या हो जाएगा टोटल में, ये तो 0 हो गया, तो 2 + 3 + 4, 5 + 4 9 - 3π, आंसर इज 9 - 3π। एवरीवन क्लियर, क्लियर एवरीवन, if yes please write in the chat box if it is clear to all, very good JNB पंचमहल, गुड, आ गया सबको समझ में, चलो बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में बोल दो क्लियर। So in tomorrow's class, we'll go through the next property and it's for your homework question. It's a homework question for you. Please take a screenshot or you can note it down. And also from tomorrow's class, also tomorrow class also, we'll discuss the properties, same properties of inverse trigonometric function. We'll be discussing in the next class also. Okay, we'll try to finish ITF in the next class because we don't have more time. Okay, so thank you all. Bye bye. Take care, everyone, guys. That's all for today's class. Thank you all. Bye bye.